Good morning, class 4, and welcome back to the online classes. All right. So, what we are going to do today is we have completed our chapter, The King and the Fiery Dragon. We have completed as far. So, today we'll do the question and answers related to the chapter. Okay, chapter 4. So, for that, you have to open page number 53 in your English textbook. All right. So this is your book here. This is your book, main course book 4 and Roots and Wings. You have to open and page number 53 as you can see in this book. All right. So we'll do the exercise related to the chapter. So first question is, at which station did Ramesh get down and whom did he meet there? कि कौन से स्टेशन पे रमेश नीचे उतरा और वहां पर वो किससे मिला. ठीक है, दैट यू हैव टू राइट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सो एट विच स्टेशन डिड रमेश गॉट डाउन, कि जो रमेश था वो कौन से स्टेशन पे नीचे उतरा, तो वो कौन सा स्टेशन था, माकनबाद रेलवे स्टेशन. ऑलराइट. एंड whom डिड ही मीट देयर, तो वहां पे वो किससे मिला, अपनी दादी माँ से मिला. ठीक है, where his grandmother met him. All right. So answer 1 will write here is Ramesh got down at Ramesh got down at Makanbad railway station. Okay. What was the name of the railway station is Makanbad railway station. And whom did he met there? Station where he or you can write he met there his grandmother. He met his grandmother there and he met his grandmother there. वहां पे कौन थी, उसकी दादी माँ. ठीक है, वो वहां पे किससे मिला, अपनी दादी माँ से. ठीक है, देयर मीन्स क्या है, देयर माकनबाद रेलवे स्टेशन. ऑलराइट. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेशन डिड रमेश गेट डाउन, कि कौन से स्टेशन पर रमेश उतरा. तो रमेश गॉट डाउन एट माकनबाद रेलवे स्टेशन, कि रमेश नीचे कौन से स्टेशन पे उतरा, माकनबाद रेलवे स्टेशन पे. एंड ही मेट हिज ग्रैंडमदर देयर. और क्वेश्चन है सेकेंड, whom did he meet there, कि वो वहां पर किससे मिला. सो एंड ही मेट हिज ग्रैंडमदर देयर, वो वहां पे अपनी दादी माँ से मिला. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द विलेज फेयर हेल्ड. वेयर वाज द विलेज फेयर हेल्ड, कि जो विलेज फेयर था, विलेज फेयर मीन्स जो गांव का मेला था. ठीक है, वो जो मेला लगा था वो कहाँ पर लगा था, कहाँ पे लगा था. ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था. द फेयर वाज हेल्ड इन अ लार्ज ग्राउंड. द फेयर वाज हेल्ड इन एक बड़े से ग्राउंड में लगा था. आंसर 2, द फेयर वाज हेल्ड in a large ground, कि एक बड़े से ग्राउंड में लगा था और एक छोटे से रॉकी हिलॉक के पास. नियर अ लार्ज ग्राउंड नियर अ रॉकी हिलॉक, नियर अ रॉकी हिलॉक, छोटी सी पहाड़ी के पास. ठीक है, हिलॉक. So move on to the next question is, who led the soldiers to the Dragon Mountain, कि Dragon Mountain जो था वहां तक कौन सोल्जर्स को लेके गया था, कौन लीड कर रहा था उनको, कौन उनके उन सोल्जर्स के आगे चल रहा था. आगे चलना मीन्स उनको लेकर जाना वहां तक. ठीक है, ड्रैगन माउंटेन तक. तो who led the soldiers to the Dragon Mountain. So who led the soldiers to the Dragon Mountain, कौन लेकर जा रहा था उन्हें, तो
king led the soldiers to the dragon mountain. All right, still write the answer. 3. The king led the soldiers to the dragon mountain. All right, so the king led the soldiers to the dragon mountain. कि जो king था वो soldiers अपने सिपाहियों को ड्रैगन माउंटेन की तरफ ले जा रहा था, पहाड़ी की तरफ, ठीक है, जहाँ पे ड्रैगन था, तो वहां पे वो उसको उनको ले जा रहा था. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज हु यूज्ड टू गार्ड द ट्रेजर. कि जो ट्रेजर था, जो खजाना था, उसको कौन गार्ड कर रहा था, कौन उसकी रक्षा कर रहा था, उसको कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा था. ठीक है, तो हु यूज्ड टू गार्ड द ट्रेजर. So what we are going to write is the dragon used to guard the treasure. Answer 4. The dragon used to guard the treasure. Alright, so this is your answer. Who used to guard the treasure is the dragon used to guard the treasure. Alright, next one is which weapons did the soldiers used to attack the dragon. कि कौन से weapons थे जो soldiers ने use किए थे उस dragon को attack करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए. So which weapons did the soldiers use to attack the dragon? So cannons थे, means जो आपकी तोप होती हैं, ठीक है, spears थे, and arrows, ठीक है, arrows थी, spears and cannons. Okay, so these were the, so what you are going to write is the soldiers attacked the dragon. Answer 5. Answer. The soldiers used to attack the dragon the soldiers attacked the with cannon, spears and arrows. ठीक है, तो इससे वो उस पे हमला कर रहे थे, किस पे, ड्रैगन पे. ऑलराइट, सो द सोल्जर्स यूज्ड टू अटैक द ड्रैगन विद cannons, spears and arrows. ऑलराइट, सो दिस इज योर आंसर कि वो इन सब चीजों से उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, किस पे, ड्रैगन पे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why did the dragon turn ferocious? कि जो ड्रैगन था वो बाद में ferocious क्यों हो गया था, कि कैसे उसका नेचर एकदम से ferocious मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाना, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाना. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बाद में क्यों हो गया था, क्यों एकदम से चेंज हो गया, वो क्यों चेंज हो गया था. आपको पता ही, आप पे बार बार कोई हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है then you will show your anger. Okay, so why did the dragon turn ferocious? So you have to write the dragon turned ferocious because the soldiers attacked him continuously. What? The soldiers attacked him continuously. कि जो soldiers थे उस पे अटैक कर रहे थे continuously. All right. So answer 6. This is your
Question number 6. Write the answer number 6. The dragon turned ferocious. Answer 6. The dragon turned ferocious because because the soldiers की जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे? Attacked him. The soldiers attacked him continuously. Alright? कि लगातार वो उस पे हमला कर रहे थे, इसीलिए जो ड्रैगन था वो क्या हो गया था? ferocious हो गया था, means dangerous हो गया था. Alright? So move on to the next question. What happened to the soldiers when they fought the dragon? कि जो soldiers थे उनको क्या हो गया था जब वो ड्रैगन से लड़ रहे थे? Alright? जब वो ड्रैगन से का सामना कर रहे थे, उससे लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त क्योंकि जो ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा ferocious हो गया था, डेंजरस हो गया था, तो वो सारे जितने भी सैनिक थे, जितने भी सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उनको क्या किया? उसने मार दिया. ठीक है, फ्लेम से और कुछ रोल डाउन होके हिल के नीचे गिर गए. सो दैट विल बी द आंसर. व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? द ड्रैगन किल्ड द सोल्जर्स. कि कुछ को तो उसने मार दिया. द ड्रैगन. आंसर 7. द ड्रैगन killed the soldiers and some, और कुछ क्या हो गए थे? रोल डाउन हो गए थे, है ना? एंड सम रोल्ड डाउन द हिल. सम रोल्ड डाउन द हिल. और कुछ रोल होके, टम्बल होके कहाँ चले गए? नीचे खाई में गिर गए. ठीक है, roll down the hill. Alright, so this is your question number 7, answer 7 of your question number 7. Now move on to the next question. What did the dragon want the king to realize? कि जो ड्रैगन था वो क्या चाहता था, क्या महसूस कराना चाहता था राजा से? ठीक है, so what did the dragon want the king to realize is उसका पाप, जो उसने सिन किया था, तो वो उसको वो महसूस कराना चाहता था. ठीक है, so the dragon wanted the king to realize that. Answer 8. The dragon wanted the king to realize his sin. उसका पाप. ठीक है, जो उसने पाप किया था वो उसको रियलाइज करवाना चाहता था. एंड realize his son that sin, that the treasure was not meant to be kept. That is all right. Yes, the dragon. So what you are going to write is to realize that his sin, that the treasure was not meant to be, was not meant to be, was not meant to be kept for the, meant to be kept for the family.
but for the sake of or the welfare of the people, but for the welfare or sake, uh, but for the welfare of the people in his people. ऑलराइट, अप टू वेलफेयर ऑफ द पीपल कि जो ड्रैगन था वो किंग को क्या एहसास कराना चाहता था, हिज सिन कि उसने पाप किया है, दैट जो ट्रेजर है कि जो ट्रेजर जो है मतलब जो खजाना है वो उसकी फैमिली के लिए नहीं है, जो वो अपनी फैमिली के लिए अपने पास रख ले, बट किसके लिए है, वेलफेयर ऑफ द पीपल कि जो उसके किंगडम में, और इफ यू वांट टू ऐड दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट्स इट, ठीक है, कि उसके जो भी राज्य में लोग हैं उनके भले के लिए है वो ट्रेजर, ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं है. ऑलराइट, so this is your exercise we have done today. So answer the following questions, and this is your A exercise. We have completed all the 8 questions. Alright, now move on to the exercise. Okay, so we'll do the exercise related to that chapter. Alright, so let's do it. So here, this is your page number 53, and we have done this exercise. Answer the following questions orally. We have completed this exercise. Now we are going to do the exercise, which is true and false. Alright, write T for the correct statement and F for the incorrect statement. कि जो आपके सही आंसर्स हैं, स्टेटमेंट सही हैं, तो आप उसके लिए T यूज करोगे, ट्रू फॉर T, एंड फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स गिवन हैं, जो गलत स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या यूज करोगे, एफ. ऑलराइट, फॉर फॉल्स. ऑलराइट, तो फर्स्ट वन इज द किंग वेंट टू द ड्रैगन माउंटेन ऑल अलोन. कि जो किंग था, राजा था, वो अकेला ही ड्रैगन माउंटेन पे गया था. सो इट्स द फॉल्स स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. इट्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द ट्रेजर वाज लेफ्ट अनगार्डेड ऑन द माउंटेन. कि जो ट्रेजर था वो माउंटेन पे अनगार्डेड था, मतलब उसकी कोई भी देखभाल नहीं कर रहा था. क्या ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं था. उसको तो गार्ड करने के लिए, उस ट्रेजर को गार्ड करने के लिए एक ड्रैगन था. ठीक है, तो द ट्रेजर वाज लेफ्ट अनगार्डेड ऑन द माउंटेन. So this is also the false statement. What? False statement. Now move on to the next page, which is page number 54. All right? Yes. So third statement is the dragon was weak and old. कि जो ड्रैगन था वो वीक एंड ओल्ड था, मतलब कमजोर और बूढ़ा सा था. क्या तो ऐसा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था. वो वीक नहीं था बिल्कुल. ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो द फॉल्स सेंटेंस. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वन इज द ड्रैगन्स आईज वर रेड विद एंगर. कि जो ड्रैगन की आई थी वो गुस्से से एकदम क्या थी, लाल थी, रेड थी. तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो इट्स द ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, this is your true statement. Now move on to the next fifth one. The king lost the battle and realized his mistake. कि जो राजा था वो बैटल हार गया था, लड़ाई जो हुई थी उनके बीच में, फाइट हुई थी, वो उसको हार गया था और अपनी मिस्टेक उसने मान ली थी. तो ऐसा कुछ हुआ था? Yes. So this is also the true statement. All right. Next one is the king took the treasure from the dragon for his queen and went to the palace. कि जो किंग था उसने वो पूरा खजाना वहां से ले लिया ड्रैगन से अपनी रानी के लिए और अपने पैलेस वापस चला गया. तो ऐसा कुछ था? बिल्कुल भी नहीं था. दिस इज ऑल्सो अ
फॉल्स स्टेटमेंट कि जो किंग था वो क्या हो गया था, हार गया था उस बैटल में, तो वो कुछ भी खजाना वहां से ट्रेजर लेकर वापस नहीं जा पाया था. ऑलराइट, नेक्स्ट इज the dragon said that the treasure was meant for the welfare of the people. कि ड्रैगन ने कहा था कि जो ट्रेजर है, जो खजाना है, वो लोगों की भलाई के लिए है एंड नॉट फॉर द किंग और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली. और वो सिर्फ राजा या उसकी फैमिली के लिए नहीं है, वो पूरी लोगों की भलाई के लिए जो खजाना है वो है. ठीक है, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही उसने यही कहा था ड्रैगन ने कि जो ट्रेजर है, खजाना है, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ना कि किंग और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए है. ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट यू हैव टू डू इज you have to tick the correct one. The king went to the dragon mountain with the queen, his daughter, his son or his soldiers. कि जो king था वो ड्रैगन माउंटेन किसके साथ गया था? क्या अपनी रानी के साथ गया था, या अपनी बेटी के साथ गया था, अपने बेटे के साथ गया था, या फिर अपने सोल्जर्स के साथ गया था? सो आंसर इज जी, हिज सोल्जर्स के साथ वो गया था. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द ड्रैगन प्रोटेक्टेड द ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ. कि जो ड्रैगन था वो ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको गार्ड कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, उसको देख रहा था, तो वो क्या अपने लिए कर रहा था? हिम फॉर हिमसेल्फ? नो. तो हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए? नो. द किंग? बिल्कुल नहीं, किंग के लिए भी नहीं कर रहा था. फॉर द पीपल. वो किसके लिए कर रहा था उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट? फॉर द पीपल. Alright, so D option is correct. Next one is people believe that the dragon turned into a diamond, rock, fossil or mineral. कि लोगों का मानना है कि वो जो ड्रैगन था वो डायमंड में तब्दील हो गया था, रॉक में चेंज हो गया था, फॉसिल में चेंज हो गया था, या फिर मिनरल में. तो किस में चेंज हो गया था वो? बी, रॉक. ठीक है, वो एक पत्थर बन गया था. ठीक है, so these are your answers. This is your exercise I have given you today. So tomorrow I'll give you some question and answer related to this chapter, D exercise. Here you can see 5 questions are there. I'll give you these questions with their answers tomorrow. All right, so see you tomorrow. If you have any doubt, any question, you can ask me on class WhatsApp group. So okay, bye bye.